السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے، ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا، میرے پوائنٹس کو، کہ میں کن پوائنٹس کی طرف جا رہا ہوں۔ ناظرین، سیما حیدر شادی سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ جب رہتی تھی تو اس کی دوستی ایک شخص سے تھی، اسے شادی کرنا چاہتی تھی، والدین کی رضامندی کے باوجود نہیں تھی اس کے ساتھ ملنے کی، وہ اس کے رشتے میں کوئی عزیز تھا، لیکن یہ والدین کو ڈاج کر کے اسے ملتی رہی، یہاں تک کہ وہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہے ان کے اس شخص سے، کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار تھا۔ یہ اس کو پسند کرتی تھی لیکن والدین کو پسند نہیں تھا، کیونکہ والدین کی رضامندی نہیں تھی، کیونکہ وہ لڑکا جو تھا تھوڑا آوارہ قسم کا تھا، چوری چکیری اور نشے میں ملوث تھا۔ اس لیے کوئی بھی والدین ہو، وہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی نہیں کرتا ایسے شخص کے ساتھ جس کا کیریکٹر لوز ہو۔ یہ ایک مکار عورت بچپن سے ہی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہی ہے، اس کے دوست بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ جوانی میں قدم رکھا اس نے، تو اس کی میل جول اس لڑکی سے زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ والدین نے سوچا کہ اب اس کو ہم اس کی شادی کر دیں، شاید باز آ جائے۔ والدین نے اس کی شادی کی، لیکن یہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہی، کیونکہ اس لیے خوش نہیں رہی، اس کو پسند تو وہ لڑکا تھا جس کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ کر سکی۔ والدین کی رضامندی کہیں اور ہو گئی، وہاں پہ اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، چند دنوں ہی اس کی شادی چلی، چند ماہ اس کی شادی چلی صرف۔ اس کے بعد غلام حیدر نے اس کو دیکھا، اس نے غلام حیدر کو دیکھا اور ان کا آپس میں تعلق بنا۔ تعلق تھا وہ کچھ ہی عرصے چلا، وہ شادی میں کنورٹ ہو گیا، یعنی ان لوگوں نے شادی کر لی۔ اب شادی کے بعد ان کا اگلا کام تھا کہ پرامن زندگی گزارنا۔ غلام حیدر پہلے شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے تھے اور ایک اچھی خاصی زندگی تھی، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، لیکن اس مکار عورت کے چکر میں وہ آ گیا اور اس کی شادی کر لی۔ شادی کے بعد 12-13 سال بڑے آسانی کے ساتھ گزرے۔ پہلے غلام حیدر نے روزی روٹی کمانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے، رکشہ بھی چلایا، مزدوری بھی کی، اور اسی سلسلے میں جب ماشاءاللہ وہ 4 بچوں کا باپ بن گیا، دونوں نے یہ طے کیا کہ یار یہ زندگی جو بچوں کی آگے اچھا فیوچر ہمیں چاہیے، تو ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی ایسا کام کیا جائے یا ایسا بزنس شروع کیا جائے جس سے ہماری بقایا جو آگے زندگی ہے اس میں آسانی پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے کچھ ادھار پکڑے یاروں دوستوں سے، کچھ اپنے عزیز اور کچھ زیورات وغیرہ شاید بیچے، یعنی اس طرح کر کے اس نے تقریباً کچھ پیسے اکٹھے کیے اور اس کو سعودی عرب بھیج دیا۔ اس شخص کو نہیں پتہ تھا کہ جس مکار عورت کے چکر میں باہر جا رہا ہوں، جس نے مجھے بہلا پھسلا کر پہلی بیوی کو طلاق دلا دی ہے، میرے والدین سے ملنے نہیں دیتی۔ یہی وہ وجہ ہے ناظرین کہ یہ کہتی ہے کہ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے۔ میں وہ بتانے لگا ہوں کہ اس کے بہن بھائی اس کو ملتے ہیں، لیکن سیما سے زیادہ رابطے میں نہیں تھے۔ رابطے میں اس لیے نہیں تھے کہ اس نے پہلی بیوی تھی جو اس کو طلاق دلا دی تھی، اس نے ان کو بچوں کو بے سہارا کرا دیا تھا، ان کو کم خرچہ دیتی تھی، یعنی جو بھی خرچہ تھا غلام حیدر اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا بنسبت پہلی بیوی کے، اور والدین کو بھی پیسے نہ ہونے کے برابر دیتا تھا۔ یہ صرف یہ تمام کام وہ اس کو خوش رکھنے کے لیے کرتا تھا۔ اگر وہ پیسے دیتا تو ناظرین یہ اس کو لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ جب وہ باہر چلا گیا تو اس نے وہاں سے کچھ رقم اس کو بھیجنا شروع کر دی، کچھ اپنے والدین اور جو 2 بچے تھے ان کو بھیجنا شروع کر دی۔ یعنی یہ اس کے تعلق اس طرح تھا کہ اس نے لڑائی جھگڑے شروع میں رکھے ضرور ہیں، لیکن جب وہ سعودی عرب چلا گیا 4 سال وہاں سے کمائی کی، اس نے اس کو گھر بھی لے کے دیا غلام حیدر نے، اور زیورات بھی دوبارہ بنا دیے، اور جو اس نے جتنا بھی قرضہ تھا ناظرین وہ تمام تر اتار دیا۔
यानी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। 70-80 हज़ार रुपये हर माहाना इसको भेजता था और इसके और इसके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा थे। वो कुछ इसने रिज़र्व किए, सेव किए, कुछ इसने अपने काम में लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता को अब तन्हाई महसूस होने लग गई थी। नाज़रीन, वो गुलाम हैदर जिसे ये कहती रही है कि आ जाओ वापस, लेकिन ज़ाहिर है एक बंदा बाहर गया हो, जाना अपने बस में होता है, वापसी अपने बस की बात नहीं होती। जिसको कफ़ील थे उनके साथ, जिनके साथ ये काम कर रहा था, एग्रीमेंट था इसका, उससे पहले पाकिस्तान नहीं आ सकता था। अगर आता तो इसकी काफ़ी नुकसानात हो जाते, इसलिए ये वापस नहीं आया और इसको यही कहता रहा मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। पैसे इसको मज़ीद भेजता रहा। उन दिनों में इसकी दोस्त इसने वहाँ अपने मोहल्ले में कुछ लोगों से दोस्ती की, किसी से मोबाइल लिया, किसी से जो भी उसकी ज़रूरत थी वो पूरी करती रही है। अब आपको पता है ऐसी औरत जब तन्हा हो जाती है, सारी सारी रात जाग के गुजारना, दिन के वक्त ये तकरीबन बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती थी, अकेली थी, कोई किसी रोक टोक नहीं थी, अपने हर फैसले में आज़ाद थी, किसी किस्म की किसी की इसके ऊपर कोई रोक नहीं थी, ना उसको रोकता था ना कोई रोकती, तन्हा रहती थी। सारे दिन सोना, रात तो सारी रात को जागना और शाम के वक्त निकलना बाहर, बच्चों को अपने हमसायों के हवाले करके चले जाना। वो लड़की मुस्कान थी, उसके पास उसके हवाले करके चली जाती थी। पूरी पूरी रात ये नाज़रीन बाहर रहती थी, मेकअप करवाती थी और ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त करती थी और आवारा फिरती थी। इस बातों का गुलाम हैदर को पता नहीं था, क्योंकि वो बाहर था और उसका पूरा फ़ायदा उठाया इसने। पहले पबजी के ज़रिए दोस्ती बढ़ाई, पहले इंडिया में ही कुछ लोगों के साथ इसने दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी, सिर्फ इसको 4 बच्चों की माँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना शक्ल रही ना अकल रही, ना वो जिस्मी लिहाज से वो इस काबिल थी कि उसके साथ कोई बंदा ताल्लुक़ बनाना सोचे। सिर्फ हाँ, हवस पूरी करने के लिए सोच सकता है, तो वो एक ज़ाती मसला है, वो एक ज़ाती फ़ेल हो सकता है। यानी चंद मिनट के लिए या चंद दिनों के लिए उसको दोस्ती बनाई और इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, ये मामला इस तरह चलते रहे। यही इसको नाज़रीन एक ऐसा लप्पू मिल गया, एक ऐसा साथी मिल गया जो खुद शक्ल से अकल से जाहिल था, उस जैसा ही उसको मिल गया, यानी जैसे को तैसा मिल गया, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि जैसा वो खुद था ऐसे ही इसको आगे ये भगोड़ी मिल गई। इनकी दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती बढ़ी तो अब इनके पास ज़ाहिर पैसा था। सीमा हैदर के पास पैसा था, उसके पास पैसा नहीं था। इसको पैसे भी भेजती रही है शादी से पहले उसके जिस वो लप्पू को। अब एक बंदे को जब लप्पू झिंगूर को पैसे मिलने लगे, उसको पता चल गया कि ये तो कोई मुझे मालदार आसामी मिल गई है। इसने उसको बताया मेरे 4 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा खामिद मुझे मारता है। ये उस वक्त तक नहीं बताया था कि मेरा खामिद बाहर गया हुआ है। यानी वो दोस्ती जो थी वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि यहाँ से दुबई गई। दुबई में उसको जनाब पूरा जितना भी पैसे थे इस्तेमाल किए, लप्पू के भी और इसने अपने भी। वो सीमा हैदर ने इसको भेजे थे पैसे। नाज़रीन, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, आप लप्पू के अकाउंट में देख सकते हैं वो पाकिस्तान से जो ट्रांजैक्शन हुई है। इसने पाकिस्तान से पैसे लप्पू को भेजे, इसलिए लप्पू वहाँ से दुबई आया, इनकी वहाँ मुलाकात हुई, कुछ दिन ये साथ रहे, फिर उसके बाद ये वापस आ गई। जब सीमा हैदर पाकिस्तान आई, अब इसको पूरा प्रोग्राम तय हो चुका था कि अब हमने क्या क्या तरीका करना है। यहाँ से आके सबसे पहले इसने सचिन से बात की कि मैं मकान सेल कर देती हूँ, अच्छा रेट लग रहा है। उसने कहा नहीं अभी नहीं करना। अच्छा फिर आप मुझे पैसे भेज दें मज़ीद, और पैसे भेजे। पैसे इसने लिए, वो भी रिज़र्व किए, और जो लोगों से उधार लिए वो भी उसने रिज़र्व किए, क्योंकि लोगों को एतमाद था कि इसकी अच्छी खासी ज़िंदगी है, इसका खामिद अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, इसको भाई से भेज रहा है, एतमाद आ ही जाता है। मोबाइल लिया, वो सेल कर दिया, किसी और को दे दिया, फिर मोबाइल ख़रीदा, वो किसी और को दे दिया, यानी किश्तों पे पैसे मोबाइल लेकर किसी और को दे देना इसका मामूल बन गया। जब देखा कि आपके पास तकरीबन 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, मकान सेल हो चुका था, 10 लाख रुपए उससे लिए, और ये वीज़ा वगैरह तैयार करवा के
नेपाल पहुंची। नेपाल पहुंचने के बाद इतने जो ड्रामा किया, AP सिंह ने उस वक्त कहा कि तुम जाओ वापस अपने बच्चों को लेके आओ। इसको ये बातें, यानी रब्ते में था पहले भी AP सिंह के साथ, वो वापस गई, बच्चे भी उसने साथ लिए और वापस नेपाल आई। बारास्ता दुबई में आके उन्होंने नेपाल से उसने अपना नाजरीन नाम चेंज किया, नाम चेंज करके बच्चों का नाम चेंज किया और वहाँ से वीज़ा बनवाया इंडिया का। और इस तरह ये बारास्ता नेपाल से इंडिया में दाखिल हुई। इंडिया में दाखिल होके 2 माह खामोशी के साथ बैठी रही, किसी को नहीं पता चलने दिया कि ये पाकिस्तान से आई है। जब लोगों को पता चला तो फिर एक वायरल हुई वीडियो, तो लोगों को पता चला कि सीमा हैदर कहाँ से आई है, इसका भी लोगों ने विरोध किया। नाज़रीन, ये तमाम मकारियाँ इसकी यहाँ से शुरू हुई। AP सिंह ने इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ किया। उसका सबसे पहले मज़हब चेंज कराया, उसके बाद उसको पाकिस्तान के लिए यूज़ किया ताकि पाकिस्तान इसका साथ छोड़ दे, पाकिस्तानी इसका साथ छोड़ दे। और गुलाम हैदर को बदनाम किया पूरे ज़ोर शोर के साथ, सबको दिखा दिया गुलाम हैदर ने उसको मारा पीटा, क्या सारी एक कहानी बनाई, एक फ़िल्मों की तरह पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया। और इसमें तमाम सहूलतें जो है वो AP सिंह की तरफ से थी, क्योंकि लप्पू को तो इस काबिल था नहीं कि वो चूहा कि वो जनाब किसको इसको सलाह दे सके, जिसको बोलना नहीं आता था वो इसको सलाह क्या देता, मशवरा क्या देता। ये तमाम कांड करवाने वाला AP सिंह एडवोकेट है, क्योंकि AP सिंह एक कानूनदान था, उसको पता था कि किन किन तरीके से इंडिया के अंदर रहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये शख्स पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, यानी पाकिस्तानी औरत को, महिला को वहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त दे रहा है, इससे कहा जाए कि जो पाकिस्तान से हिंदू फैमिलीज़ वहाँ गई हुई हैं, तकरीबन 40-45 साल से बैठी हुई हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं दिला रहा है? एक औरत को किस लिए यूज़ कर रहा है, ये सवाल बनता है। ये क्या चाहता है? पाकिस्तान को बदनामी चाहता है या इंडिया के लिए कोई बुरा करना चाह रहा है? ये मुलव्वस होगा इस मामलात में, तमाम एक्टिविटीज़ में। इससे ये सवाल करना बनता है आपकी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनका। अब जो उसका विरोध कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ पूरा एक महाज खड़ा किया हुआ है, उनके यूट्यूब चैनल्स बंद करवा दिए जाते हैं। जो उसके हक में आ रहे हैं उनको जनाब उनके ख़िलाफ़ केस कर दिए जाते हैं। यानी एक सहमी सी औरत, एक डरी सी औरत जिसको पता ही नहीं था कि मैं इंडिया में रहूँगी न रहूँगी, अब उसके अंदर इतनी ताकत पैदा हो गई है कि वो हर औरत को कह रही है, हर बंदे को कह रही है जिसको मुझे पसंद नहीं है वो मुझे ना देखे। नाज़रीन, वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मज़ीद फिर दोबारा इस वीडियो में हाज़िर होगा, फिर नई अपडेट के साथ होऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई खुलासे के साथ हाज़िर होऊंगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।